Good afternoon, class 6. How are you all? Hope you all will be doing good in your home, and I hope you all will be preparing yourself for the first term exam. Okay. So class, in the last class we have completed chapter number 13, electricity and circuit, है ना? Up to page number 158, activity number 2, we have completed the portion. Okay, now in this class we are going to discuss from the page number 159, multiple choice question, electric circuit, electric switch. Okay, everything we are going to discuss. Electric torch, internal view of electric torch, insulators and conductors. Almost this chapter is going to be completed in this week. Okay, in this class. So let's start. First, tick the correct answer. Page number 159. How many terminals there are in an electric cell? There are two terminals. Okay, positive and negative. Second, the outer covering of the cell is made up of zinc. We insert dash in a quartz watch for its working, a button cell. Okay, the answer is C, button cell. Fourth, electric cell is not used in refrigerators. रेफ्रिजरेटर्स में इलेक्ट्रिक सेल यूज़ नहीं होता है. ओके, सॉरी, इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रिक सेल रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ नहीं होता. फिफ्थ, विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? Fan is not the source of electricity. Power station, generator and battery are the source of electricity. Okay, we have completed the multiple choice question. Take the correct answer with very carefully, students. Now the electric circuit. As we all know, the flow of electricity is known as electric current. ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. ओके, द पाथ अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट. अब जिस पाथ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है दैट इज सेट टू बी एज इलेक्ट्रिक सर्किट. हम पहले स्विच को ऑन करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है, एक वायर कनेक्टेड रहता है फैन से, वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बटन के थ्रू, वो वायर के थ्रू पूरा फैन तक. अब फैन में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो फैन स्टार्ट होने लगता है, तो वो एक पूरा पाथ कंप्लीट कर रहा है. दिस पाथ इज सेट टू बी एज इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ग्लोस और इलेक्ट्रिसिटी रन्स व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड. जब सर्किट क्लोज होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी रन करेगा. पिछले एक्टिविटी में हम लोगों ने यही देखा, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड देन द इलेक्ट्रिक सर्किट गेट्स अ प्रॉपर पाथ टू रन. और जब इलेक्ट्रिसिटी ओपन होगा, कहीं से भी वायरिंग टूटी होगी, कनेक्शन लूज होगा टर्मिनल में स्विच के या फैन के, तो इलेक्ट्रिसिटी ओपन है, सो द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट बिकॉज द सर्किट इज ओपन. These are the two conditions where the electricity run. As you see in the picture figure 13.7, इसमें क्या हो रहा है, सेल के दोनों टर्मिनल से रेड और ग्रीन जो वायर से वो कनेक्टेड है, किसके? बल्ब के दोनों कनेक्शन से. दिस पाथ इज क्लोज्ड, then the circuit is closed, the path is closed, so the electric currents flow easily, then the bulb glows. अगर कहीं पे वायर का कनेक्शन लूज होता या वायर टूटी हुई होती, बल्ब फ्यूज होता, तो इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं करता और बल्ब ग्लो नहीं करता. ओके, सो दिस इज सेड टू बी एज इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड इट. नाउ स्टूडेंट्स, पेज 10, open 160, page number 160. So there a fused bulb does not light up, has no current pass through this filament. Fused bulb होगा, as we all know that, तो filament में electricity pass होगी नहीं और bulb glow नहीं करेगा. This is the common phenomena when the electricity is closed. The electric current will pass and the bulb glows, or any other electric appliances will run. Or if the electricity is open, the circuit is open, the electricity will not pass through it. Okay, so in previous activity you have seen that the bulb glows when the circuit is complete and the bulb goes off when the circuit is broken. In daily life, completing and breaking the circuit in this manner is not easy. हम daily इसको ऐसा check तो नहीं कर सकते हैं, तो we use a convenient arrangement which is we use a simple and easier and convenient arrangement for us. Then we take the इलेक्ट्रिसिटी रन्स. हम लोग बार बार ये नट बोल्ट ओपन करके ये सब देख तो नहीं सकते सर्किट क्लोज है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी रन कर रहा है कि नहीं, तो वी यूज़ अ इलेक्ट्रिक switch, which is very convenient arrangement for us to make all the things easier. So let's discuss what is electric switch. An electric switch is a simple device that is used to open or close an electric circuit.
ओके। ओपन और क्लोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हम उसको स्विच ऑन ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रन करता है और तुरंत जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो रन करने लगता है। स्विच को जैसे ही ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी रन करना बंद हो जाता है। तो एक प्रॉपर डिवाइस है जिससे हम एक अपने ओपन और क्लोज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इसको यूज़ कर सकते हैं ओपन और क्लोज करने के लिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को रन करने के लिए। Switch comes in various shapes and sizes. Sometimes a switch is also referred as key in an electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग इसको की भी लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो क्लोज्ड की इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड ओपन की इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लोज और ओपन में दोनों में डिफरेंस क्या होगा देखो। जैसे ही तुम लोग स्विच को ऑन करोगे, एक वायर कनेक्टेड रहता है, वो क्लोज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी रन करने लगता है। और जैसे ही तुम उसको ओपन करोगे, जैसे ऑफ करोगे, तो वो जो वायर है वो ऊपर हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पाथ इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं करेगा। ये एक प्रॉपर कॉमन फिनोमिना है इलेक्ट्रिक स्विच का रन करने का। ओके, सो हियर इन वन एक्टिविटी इज गिवन अ सिंपल construct a simple electric current. So what things you need: a piece of thermocol, a safety pin, a drawing pins, 3 plastic coated wires with bare ends, a torch bulb, an electric cell and a cello टेप। तो सिंपल है, इसमें भी वही दिखाया है कि इलेक्ट्रिसिटी क्लोज और ओपन कैसे होगा, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे दिखाया है जैसे ही तुम इसको रन करोगे, टच करोगे, सेफ्टी पिन सबका अरेंजमेंट है, वायर से कनेक्ट करके रखना है। जैसे ही वो क्या बोलना चाहिए, वो जो पिन है वो अनदर सर्किट से क्लोज हो जाएगा तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, और जैसे ही पिन को तुम हटा दोगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा एक्टिविटी में, तो वो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। तो सिंपल, अभी तक हम जितने भी एक्टिविटी पढ़ते आ रहे हैं, सो यही हम देखते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्लोज, सर्किट क्लोज है, पाथ क्लोज है, तो द बल्ब और द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विल ग्लो और रन। इफ द पाथ इज ओपन, सो द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विल नॉट run or the bulb will not glow. Okay, this is the common phenomena up to which we are studying up to this. Okay, ये common phenomena चलता आ रहा है open and close circuit का। Now students come to page number 161. Now we are going to discuss how does an electric torch work. So this electric torch is your homework. You have to draw this diagram in your copy. I am saying again and again, this figure 13.10 inside view of an electric torch is your homework. This you have to draw in your copy. सिंपल देखो इसका अरेंजमेंट है, इतना मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी कि पूरे एकदम कहानी उसको पढूं, मैं तुमको सिंपल इसका वर्किंग समझाती हूँ। सी, ये पूरा इलेक्ट्रिक टॉर्च है, ओवरऑल व्यू। बल्ब लगा हुआ है, रिफ्लेक्टर है जिसे हमको रिफ्लेक्ट करके रोशनी पूरी दूर तक फैलती है, 2 इलेक्ट्रिक सेल्स लगे हुए हैं, प्लास्टिक केजिंग होता है बल्ब इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर, एक मेटल स्ट्रिप है जिसको हम लोग बी बोल रहे हैं, एक मेटल स्ट्रिप ए है, देखो मेटल स्ट्रिप बी ए, और स्प्रिंग लगा हुआ है, मेटल स्ट्रिप सी है, स्लाइड स्विच इन ऑन पोजिशन, ऑन और ऑफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच लगा हुआ है। सो थ्रू द स्प्रिंग a metal strip C is connected to metal strip A and metal strip A is connected to metal strip B which is connected to the bulb. सिंपल है, क्लियर हम लोग को इसमें दिखाई दे रहा है। अब नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है स्प्रिंग के थ्रू, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है सेकेंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है थ्रू द कनेक्शन जहाँ से बल्ब का है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं द अपोजिट टर्मिनल्स वेर कनेक्टेड टू द अपोजिट ओके चार्जेस, प्लस माइनस प्लस ऐसा कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट कनेक्शन है। तो जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे, उसमें क्या होगा, जैसे ही द स्विच ऑन फॉरवर्ड पोजीशन में पुश करेगा, ओके, द मेटल स्ट्रिप ए पुश्ड फॉरवर्ड, क्योंकि वो कनेक्शन स्विच है वो फॉरवर्ड पुश होगा, देन इट टचेस द बी एंड सी, द सर्किट इज कंप्लीटेड। वो क्या करेगा, बी और सी सर्किट को टच करेगा, तो क्या होगा, सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया थ्रू दिस ए, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी विद द कंप्लीट सर्किट, क्लोज्ड सर्किट एंड द बल्ब विल ग्लो। जैसे ही उसको तुम पुश करोगे, ऑफ पोजीशन में लाओगे, द मेटल स्ट्रिप बिटवीन ए एंड बी इज ब्रोकन। अब वो क्या होगा, ए और बी के बीच में जो मेटल स्ट्रिप है वो ब्रोकन, मतलब वो ओपन हो जाएगा सर्किट, और क्या होगा, पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, ओपन सर्किट हो गया। सो द कंक्लूजन इज दैट व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड इन इलेक्ट्रिक torch it will be glow, and when the circuit is
open in the the bulb will not glow. यहाँ भी सेम वही कनेक्शन है ओपन एंड क्लोज सर्किट का. Okay, so now we are going to discuss the electric conductor and insulator. So what is electric conductors and insulators? So here one activity is given about electric conductors and insulators. Let's discuss this activity. All of you page 10, open page number 162. यहाँ पे देखो इतना मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इंसुलेटर होता है, क्या कंडक्टर होता है. यहाँ पे सिंपल मैं तुमको एक्टिविटी को देख के ही समझा सकती हूँ कि व्हाट इज़ इंसुलेटर एंड कंडक्टर. फर्स्ट वी यूजिंग द वायर, टू वायर, अ टॉर्च, बल्ब एंड अ सेल. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से वायर के बेस में कनेक्ट कर दिए और एक नेगेटिव टर्मिनल से एक और ओपन सर्किट ले रहे हैं. सर्किट कंप्लीट नहीं है, ए एंड बी. इफ़ यू सी द फिगर 13.11 ए, ठीक है, वो सर्किट कंप्लीट नहीं है, वो भी कनेक्टेड है बल्ब के थ्रू. नाउ व्हाट वी आर टेकिंग अ पेपर क्लिप ऑफ स्टील. स्टील ले रहे हैं, स्टील इज अ मेटल. यू कैन सी द सर्किट इज क्लोज्ड. वो ए और बी जो सेक्शन है वहाँ पे पेपर क्लिप रख दिए. ठीक है, और सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया. तो क्या करने लग रहा है, बल्ब लाइट्स अप. द बल्ब विल ग्लो बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीटेड. द इलेक्ट्रिसिटी, उसको एक पाथ मिल गया, दे गेट अ पाथ टू रन, सो द बल्ब विल ग्लो. नाउ again remove the paper clip and put a rubber eraser to the circuit. A और B के बीच में eraser रख दो. You will observe that whether the circuit is completed, okay, close हो गया, but the bulb will not glow. So why? Because paper clip made up of steel is a metal. Metal is a good conductor of electricity while rubber is a bad conductor of electricity. This is said to be as conductor and insulator. Okay, so you can define as the material that allow electric current to pass through it. They are called as conductor or conductors of electricity. For example, metals are good conductor of electricity. Electric wires are made up of copper because it is a good conductor of electricity. All non-metals are bad conductor of electricity except graphite. Graphite is a good conductor of electricity. Okay, switches, electrical plugs and sockets are made up of good conductor of electricity. Clear हो गया? Now insulators, the material that do not allow electric current to pass through them are called as insulators. ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते हैं पास होने के लिए, दे आर सेड टू बी एज इंसुलेटर्स. लाइक इलेक्ट्रिशियन, रबर, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास आर ऑल कॉल्ड द इंसुलेटर्स. जैसे इलेक्ट्रिशियन को मैंने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रिशियन यूजिंग द रबर ग्लव्स, ओके, व्हेन दे डू एनी रिलेटेड इलेक्ट्रिकल वर्क, वो रबर पहनते हैं अपने ग्लव्स में. आपने हाथ में ग्लव्स पहनते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ रबर. वी यूज प्लास्टिक स्लीपर्स और रबर स्लीपर्स व्हेन वी एनी इलेक्ट्रिकल वर्क वी आर डूइंग इन आवर होम. ओके, सो दिस इज good conductor and bad conductor which is called as conductors and insulators, okay, of electricity. Please student, don't do these things in your home. ये हार्मफुल हो सकता है. प्लीज़ ये सारी चीज़ें अपने घर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट आफ्टर द completion of video, read the chapter once. It will take hardly 10 to 15 minutes to read the chapter. Okay, now we are going to start the multiple choice question. Okay, multiple choice question. First one, electric current flows only when the circuit is closed. Okay. Second, the device that is used to open or close an electric circuit is an electric switch. Answer is electric switch. Third one, which of the following is an insulator? Is not an insulator. जो insulator नहीं है. Rubber, wood and plastic are the insulators. Only copper is not a insulator, is the conductor. Now fourth one, when the switch of an electric torch is pushed to on position, the circuit is complete. Okay, the circuit is complete. Fifth one, the bulbs light up when the cell, the bulb and the wires make a closed circuit. So this is your answer. Now all of you take out page number 163, the last topic, electrical safety. So why we are going to learn this electrical safety? Because the electricity which we use at home generated at electric power station and brought to our homes by thick cables. As we all know that a person may get any electrical shock because our body is good conductor of electricity. Our body is good conductor of electricity. We should protect ourselves from dangerous and पेनफुल इलेक्ट्रिक शॉक. हम लोग को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए. एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑल्सो, इन द लास्ट ऑल्सो, some
Preventive measure to avoid electric shocks are as follows. First one, replace the light bulb only when it is switched off and cool. हम घर में बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, उसको चेंज करते हैं, एनी फॉर एनी अदर रीज़न वी चेंज, वी रिप्लेस द बल्ब. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू स्विच ऑफ with the electric switch and wait for 10 to 15 minutes. When it's cool, then we will replace it. Second, never touch electrical switches or gadgets with your body is wet. कभी भी नहा के आ रहे हो, हाथ गीला है, तो इलेक्ट्रिक स्विच को या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड, डोंट ट्राई टू रिपेयर और इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अप्लाइंसेस. ये हमको खुद से ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए बिल्कुल भी. ओके, वेट फॉर द पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट इट. उसको बुलाओ घर पे इलेक्ट्रिशियन को एंड डू द थिंग्स. थर्ड, do not touch electrical poles and transformers on the road. Do not touch a hanging wire on the road. ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इलेक्ट्रिकल जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी नथिंग नो अबाउट द थिंग्स. ओके, दिस इज़ वेरी हार्मफुल टू अस. फिफ्थ, नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइन्स. जहाँ पे पावर लाइन्स वगैरह है वहाँ पे कभी भी पतंग वतंग नहीं उड़ाना चाहिए. सिक्स्थ, नेवर जॉइन द इलेक्ट्रिक वायर्स विद द बेयर हैंड्स. खाली हाथों से इलेक्ट्रिक वायर को कभी भी टच नहीं करना चाहिए. इट इज़ वेरी पेनफुल एंड हार्मफुल फॉर अस बिकॉज इट गिव्स शॉक्स. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज completed. ओके, एंड October month syllabus is also completed. और in the next month, November, we definitely start the chapter number 14. From chapter number 14, magnetism. Okay, till then complete your work and prepare yourself for the exam. And whatever doubts related to the chapter, when we do the live classes of this chapter, you will ask to me. Okay students, so see you all in the next class with the fresh new chapter. Okay, till then take care of yourself everyone, and please prepare yourself for the exam. Okay, because your first exam is science. ठीक है, जो भी डाउट होगा related to the chapters, ask to me. Till then take care of yourself. Thank you so much class.